Hello everyone. In the last class we discussed up to the question number 53. Now we will discuss further question. Now come to the first question number 56. Now see the 56. The decreasing order of stability of following cation means we have to check the stability of carbocation. Okay. Now see all the effect. The P have plus M effect and minus I. Similarly, Q have plus M and minus I, and R have plus H as well as plus I, and the S have only minus I effect. And we know that the stability of plus charge will be increased by all the plus effect and decreased by all minus effect. So this one have minus I and rest have plus I. So S will be the least stable among these four. Okay, so S will be at last. Now compare P, Q and R. R have plus H and P and Q have plus M. Which will dominate? Plus M will dominate. Since plus M is increasing the stability, so it will increase stability more than plus H. Okay, so plus H will, is less dominating, is do not dominate over plus M. So stability increased by plus H will be less than plus M. So stability of R will be less than P and Q. So we can write R here. Okay. Now compare between P and Q. Both have plus M. Now see their minus I. NH2 is less electronegative. Its minus I is less than OH. Since its minus I is less, so its stability will be more than P. Is it okay? So Q will be more stable than P. So Q will come first, then P, then R and S. So Q, P, R, S, D. See the option D. That is the correct answer. Now question number 63. Come to the question number 63. Question number 63. Yeah. Here is the question number 63. Now C N group. See the first one have minus M as well as minus I. This one meta position. Do mesomeric operate on meta? No, we know that mesomeric do not operate at meta position. Here we have to see the question. What is question? The decreasing order of stability of following anion. एनाइन का स्टेबिलिटी निकालनी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. क्लियर है. तो ऑर्डर के लिए तो वो सिंबल यूज़ कर रखा है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो अपने आप पता चल जाता है. काफ़ी बच्चे उसको लेके कंफ्यूज करते हैं. अरे जब यहाँ पे सिंबल ही यूज़ कर रखा है तो इसमें कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है. क्लियर है. तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया. प्लस एम कहाँ ऑपरेट करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे. इट डू नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन. सो in this molecule it is available at meta position, so we have to write it only minus I, means only minus I will operate, minus M will not operate. In our minus M as well as minus I operate here, no effect. Okay, and we know that all the minus effect will increase the stability of minus charge. Okay, and we have minus charge and all the minus effect will increase the stability. So the last one do not have any effect, so its stability will be less than rest 3. Okay, so write S at the last. Now minus M dominate over minus I, so stability increased by minus M will be more than minus I. That's why Q will come before S. Now we have to compare P and Q. See, minus M is same. Now we have to compare minus I. Cn is in the first one, Cn is available at ortho. In R, Cn is available at para position. In the first one, when it is available at ortho, distance is less, so minus I will be more and minus I is more, so stability will be more. So P will be more stable than R. So this will be the correct order. P, R, Q and S. P, R, Q and S. C is the correct answer. Question number 64. Check the question number 64. 64. See, you know that CCl3. So minus H effect. Is it okay? CCl3, so minus H effect, or C with Cl. Carbon with Cl can show minus H effect. So it have 3 minus H. It have 3 minus H. It have 2 minus H. It have 1 minus H. Okay, and this have 3 plus H.
Now check this one and this one. The one thing you have to remember that if the molecules have both the effect minus H as well as minus M, minus H as well as plus H, because this is the alpha carbon. Here you can see here H is also available, here H is also available, and chlorine is also available. So it can show minus I minus H as well as plus H. So what we have to consider? No, always plus H always dominate over minus H. Is it okay? If we have to compare between, if same molecule so minus H as well as plus H, then what will you consider? You have to consider plus H. Okay, we never consider minus H, but this one have only minus H effect, so we will consider here minus H. That's why I told you that only CCl3 is available in your syllabus which show minus H effect, correct? The last one have minus H, then this one have plus H, this one have plus H, and this one have plus H. It have 3 plus H, it have 2 plus H, it have 1 plus H, correct? So minus H will increase the stability, so the last one S will be most stable. So stability of S will be more than rest 3. Now plus as the number of plus H increase, plus H will decrease the stability of कार्बोनाइन. नेगेटिव चार्ज प्लस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो जितने ही प्लस है वो डिक्रीज करेगा. तो पहले वाले में 3 है, फिर 2, फिर 1. तो जितना कम प्लस है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, उतना कम अनस्टेबल करेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बाकी से उतनी ज़्यादा. इज इट ओके? तो कौन सा आ जाएगा? आर आ जाएगा. फिर कौन सा? क्यू. फिर कौन सा आ जाएगा? पी आ जाएगा. तो दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर. तो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Now question number 66. Come to the question number 66. Question number 66. The most unlike representation of resonance structure of para-nitrophenoxide. So see what is phenoxide. Phenoxide means phenol having O minus. Okay. H को रिमूव करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बच जाता है फिनॉल का, दैट इज फिनॉक्साइड. पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड मीन्स यहाँ पे NO2 को अटैच कर देने. क्लियर है? तो विच वन इज द नॉट करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? द C1. C. नाइट्रोजन हैव 5 बॉन्ड एंड व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? इट इज 4. मीन्स नाइट्रोजन may have a maximum of 4 bond, but here nitrogen have 5 bond, which is not possible. Is it okay? So this one is not the resonating structure. This is not correct. Okay. Question number 79. Come to the question number 79. Question number 79. Which of the following is most acidic? Oh, you have to find which one is most acidic. Now see. Let me take one page. Okay, here is the page. We have to remove it first and then we will draw it again. Okay, see this one. CH2 and H and double bond O, coordinate bond O. क्लियर? तो देखो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, इसका मतलब क्या करने हैं? H को हटाने हैं. H हटाने के बाद क्या होगा? यहाँ पे माइनस है और माइनस के स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये ग्रुप क्या है? माइनस M लगा रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. उसी तरह दूसरे वाले में अगर हमने H को हटाया तो अब की बार यहाँ पे कौन है? ये वाला ग्रुप अवेलेबल है, ये भी माइनस M शो करेगा. थर्ड वाले में चेक करें तो 3 NO2 ग्रुप है. एक इधर हो गए, एक इधर NO2 हो गए और एक इधर NO2 हो गए. और जो H यहाँ से H यहाँ पे अवेलेबल था उस H को हमने हटा के क्या किया? यहाँ पे माइनस सप्लाई कर दिया. क्लियर है? उसी तरह यहाँ भी माइनस है. और लास्ट वाले में क्या है? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक PH फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे एक PH फिनाइल ग्रुप और यहाँ पे एक PH. क्लियर है? तब देखो माइनस M, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 माइनस M. यहाँ भी सॉरी, यहाँ भी माइनस M है और ये माइनस M कितना है? 3 माइनस M है. और यहाँ पे रेजोनेंस है हमारे पास अवेलेबल. अब चेक करने हैं तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है. तो देख लीजिए इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से तो ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे
3 माइनस एम है। अब इन दोनों में चेक करेंगे तो इन दोनों में यहाँ पे रेजोनेंस और यहाँ पे मेसोमेरिक कौन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा? मेसोमेरिक ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी सी। तो सी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79. Now come to the question number 81. Arrange the following compound in decreasing order of their acidic strength. acidic strength का decreasing order में निकालने हैं। तो चेक कीजिए क्या है। पहले वाले में देखो नो रेजोनेंस, तो चेक करने हैं। इधर इस वाले में चेक करो, R को चेक कीजिए। अगर R वाले में हमने H हटाया, अगर H को हटाया तो इस ग्रुप का -M ऑपरेट करेगा O माइनस पे। क्लियर है? इस वाले में -M ऑपरेट नहीं करेगा, मगर ये रेजोनेंस में जा सकता है। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक में कौन जीतता है? मेसोमेरिक। तो R की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, मतलब R का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फिर कौन सा आ जाएगा? Q आ जाएगा। इन दोनों में चेक करें। कार्बन पे H ऑर्डर याद होगा आपको, RO माइनस का बताया था या OH माइनस का भी बताया था। OH माइनस एंड CH2 माइनस में कौन ज़्यादा बेसिक होता है, वो ऑर्डर भी याद होगा आपको, आप उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सीधा यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन पे अटैच हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर एसिडिक दैन H अटैच टू कार्बन। क्लियर है? तो यहाँ पे कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैच हाइड्रोजन है। तो कौन सा पहले आ जाएगा? ये वाला पहले आ जाएगा, P पहले आ जाएगा और S लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है? वो जो ऑर्डर आपको लिखाया था CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ऑर्डर से देखेंगे NH2 माइनस पर C ट्रिपल बॉन्ड CH माइनस, फिर OH माइनस। तो इसमें देखो ये क्या है? लेस बेसिक है तो ज़्यादा एसिडिक आ जाएगा। क्लियर है? समझा? लेस बेसिक है तो मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एच डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा। तो उससे भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हो, तो तुम ऐसे ही निकालो, इस ईजी। चलिए यहाँ तक हो गए क्वेश्चन नंबर 81। नाउ क्वेश्चन नंबर 85। कम टू द क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 ना, see the 85. Okay, I need a blank page for this question. Okay. Which of the following reaction does not proceed in forward direction? तो कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा? एसिड बेस रिएक्शन बताया था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। वो चीज़ चेक करने आपको हमने क्या बताया था? 2 तरीके बताए थे, शॉर्टकट से बताना है, दूसरा अपना बेसिक रूल लगा के बताना है। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट से करना चालू करेंगे। तब यहाँ पे देखो कि फर्स्ट वाले में अगर मैं S पे माइनस रखूँ और H प्लस को रखूँ, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक सेकेंड में इधर ये देखिए, C2H5 एंड S माइनस, साथ में क्या हो गया? OH माइनस, सॉरी यहाँ पे H प्लस को रख दिया। अब इन दोनों में चेक करना कौन H प्लस को लेकर के जाएगा। तो कौन ज़्यादा बेसिक है? तो टॉप टू बॉटम चलते हैं। क्या बताया है? साइज इंक्रीज करेगा, एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो ये क्या है? ज़्यादा बेसिक है तो इसको H मिलना चाहिए, मतलब H2O का फॉर्मेशन होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S माइनस पे Na आ जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है इस वाले में, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन क्या है? अल्कोहल एंड CH3 माइनस। ओके, अल्कोहल एंड CH3 माइनस। नाउ सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास C2H5 एंड OH एंड CH3 माइनस। MgBr का मतलब क्या हो गया? इसके साथ आयनिक बॉन्ड बना के रखेगा, मतलब Mg एंड Br। अब इसका रिएक्शन देखने हैं तो हमने क्या बोला कि आप क्या करें, इसको हटाए और H प्लस को ऊपर लिख लीजिए और यहाँ पे माइनस। अब दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक है? तो कार्बन पे माइनस जो होता है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस को स्टेबल कर पाता है। तो दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा? ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो ये H को लेकर के जाएगा तो प्रोडक्ट में CH4 आना चाहिए। तो देखो यहाँ प्रोडक्ट में CH4 है या नहीं। तो पहले वाले प्रोडक्ट में देखिए, पहले वाले प्रोडक्ट में वाटर अवेलेबल है, दूसरे में CH4 अवेलेबल है। क्लियर है? मतलब ये दोनों तो रिएक्शन हो सकती है, हो सकता है, ये दोनों रिएक्शन हो सकता है। अब थर्ड वाले रिएक्शन पे आइए, थर्ड वाले रिएक्शन पे आ जाइए।
H इधर लेके चला गया तो बाकी इसके साथ दूसरा क्या बनेगा कंपोनेंट, इसके साथ दूसरा कंपोनेंट C2H5O एंड MgBr। क्लियर है, तो ये बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या था, इसके पास Na चला जाएगा। लास्ट थर्ड वाले पे आ जाओ, CH3 C2H5 लिखो, C2H5 एंड OH प्लस OH माइनस। अब चेक करने हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, H को हटाइए और H को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, H प्लस O माइनस। कौन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, जो ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे देखो OH माइनस एंड C2H5, C2H5 का ही अल्काइल चेन प्लस आई लगाएगा, यहाँ पे H का प्लस आई नहीं निकलता, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ये ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, इस वाले का इस वाले से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको H मिलना चाहिए, तो इसको H मिलेगा तो प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए हमको, C2H5 एंड OH और साथ में जो NaOH था तो NaOH ही रहना चाहिए। अब प्रोडक्ट में आके देखो, प्रोडक्ट में क्या बना है, प्रोडक्ट में आके देखिए क्या बन रखा है। तो प्रोडक्ट में देखिए आप में क्या बना है, HOH को दे दिया गया, OH मतलब वाटर का फॉर्मेशन करा दिया गया। वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है क्या यहाँ पे, नहीं हो सकता। क्लियर है, तो ये रिएक्शन आगे के डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करेगा। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 85। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर निकालने हैं, H प्लस डोनेट करने की टेंडेंसी। ओके, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो H प्लस डोनेट करने का मतलब क्या है, H को हटाने के बाद एनाइन की स्टेबिलिटी। तो पहले वाले में देखो एनाइन क्या बन जाएगा, C2H5S माइनस, दूसरे वाले में C2H5O माइनस, थर्ड वन विल हैव C2H5 एंड N माइनस, एंड लास्ट वन विल हैव C2H5 एंड CH2 माइनस। ओके, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन N एंड कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, तो एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल और ये वाला क्या इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल देन कार्बन। तो ये दिस विल बी द देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। करेक्ट। अब S माइनस और O माइनस में चेक करें, टॉप टू बॉटम चलते हैं, क्या बताया, एनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। क्लियर है, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन साइज एंड डिक्रीमेंट इन चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है एनाइन का, H डोनेट करने के बाद जो एनाइन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वही क्या होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी मोर एसिडिक दैन सेकेंड, सेकेंड वन विल बी मोर एसिडिक दैन थर्ड, थर्ड विल बी मोर एसिडिक दैन फोर्थ। C will be the correct answer. Question number 87. Now come to question number 100. Question number 100, 100. Question number 100. See this one. अरे ये तो एकदम ही आसान सा सवाल है, क्या निकालने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 100, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स में इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है। चेक करके देखिए, इस वाले में चेक करो, ये बता है, ये अगर H को हटाने के बाद ये मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिनॉल वाले में क्या जाता है, O माइनस। बताया है कि ये हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, R से ज़्यादा है। और साथ ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन फिनॉल, तो उससे भी आ जाएगा। तो Q ग्रेटर दैन R, यहाँ तो आ गया। R में रेजोनेंस है, P में कोई रेजोनेंस नहीं है, S में कोई रेजोनेंस नहीं है, R विल बी मोर एसिडिक दैन P एंड S। नाउ P एंड S में चेक करो, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन पे, तो CH3O माइनस, CH3 H डोनेट करने के बाद O माइनस, एंड यहाँ पे CH3 एंड H माइनस। कौन ज़्यादा स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, P देन S, QRP एंड S, QRP एंड S, A विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ 108, क्वेश्चन नंबर 108, कम टू द क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 चेक करें, इस वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने हैं। नाउ वी हैव टू कंपेयर द, तो देखो यहाँ पे कोई और इफेक्ट लग रहा है, मेजोमेरिक लग रहा है क्या, नहीं लगेगा मेजोमेरिक, मेजोमेरिक नहीं लग रहा है। कि दूसरा कोई इफेक्ट चेक करें, दूसरा कोई इफेक्ट चेक करें, लग सकता है। मेजोमेरिक इज़ नॉट अवेलेबल, मेजोमेरिक अवेलेबल नहीं है।
हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं तो ओनली इंडक्टिव। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है, बीच में sp3 कार्बन से, यहाँ तो ये रेजोनेंस कर भी नहीं सकता और ये कर सकता है, मगर बीच में sp3 रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे रेजोनेंस अवेलेबल नहीं है। तब क्या लगाना है, ओनली इंडक्टिव लगेगा। तो चेक करो इंडक्टिव का ऑर्डर में n+3 क्यू का इंडक्टिव हमेशा क्या होगा, ये n+3 ऑर्डर याद करें n3, ये इंडक्टिव बहुत ही ज़्यादा होता है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका आ गया, क्यू का आ गया। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा क्यू के बाद पी एंड आर में चेक करो, पी एंड आर में चेक करेंगे तो पी का ज़्यादा होगा, आर का उसके बाद आएगा। CN और NO2 में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NO2, इसका इंडक्टिव क्या है, ज़्यादा है। ऑर्डर देख लेंगे, ऑर्डर लिखवाया है। और फिर लास्ट में क्या आ गया, लास्ट में OH माइनस का CN से कम होगा, तो फिर R देन S, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। अरे ये किसी ऑप्शन में नहीं दिया, A होना चाहिए मगर A में गलत दे रखा है, A में भी गलत दे रखा है 108, नहीं ए होना चाहिए बट ए में भी गलत दे रखा है। तो ये करेक्ट ऑर्डर का सवाल में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ तो दिक्कत रह गई, ठीक है। बट करेक्ट आंसर ये है QPRNS, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कोई और इफेक्ट आप अप्लाई करके देखिए, कोई और इफेक्ट लगा सकते हैं क्या कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कहीं भी +M -M नहीं लगेगा। रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है तो +M -M तो लगा ही नहीं सकते। अब हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंडक्टिव का ऑर्डर निकाल करके आप चेक कीजिए, तो ऑर्डर में ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये आएगा, फिर करेक्ट है, यही करेक्ट आंसर आएगा। ये आंसर इसका ऑप्शन गलत दे रखा है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 108 हो गए। क्वेश्चन नंबर 119 या the question is डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एनिलीन डेरिवेटिव। तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने हैं, नो क्वेश्चन इज हेयर, सॉरी दिस इज द क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर निकालने हैं। नाउ सी दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल, दिस इज ईथर एंड दिस इज अल्कोहल। तो अल्कोहल मीन्स दिस इज फिनॉल एंड दिस इज अल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये देखो क्यू जो है, क्यू इज मोर एसिडिक। क्यू कौन सा है, क्यू हमारा ये स्ट्रक्चर है C≡OH। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, हमेशा अल्कोहल और फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, क्यू आ गया। अब दूसरा जो दे रखा है P एंड S में चेक करो, S जो है हमारा, S इज दिस, दैट इज फिनॉल, एंड P जो है, P इज दिस वन, CH2 एंड OH। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो Q के बाद S आ गया। अब इस वाले को चेक करने हैं और ईथर को चेक करना है। ईथर में क्या क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है ONCH3। यहाँ तो एसिडिक H भी अवेलेबल नहीं है, तो कौन होगा, ये ऑक्सीजन पे अटैच और यहाँ पे कार्बन पे अटैच H है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है, तो S के बाद P एंड P के बाद कौन सा आ जाएगा, R। दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, Q S P एंड R, ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 120 भी उसी टाइप का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 120 सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, चेक करो। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 120 में। क्वेश्चन नंबर 120 में चेक करें तो ये वाला क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। अब चेक करो, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे अटैच हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन। तो यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उसके बाद कौन सा आ गया, आर, फिर लास्ट में एस, लास्ट जो ईथर दे रखा है। क्लियर है, यहाँ पे एसिडिक एच भी अवेलेबल नहीं, बहुत लीस्ट एसिडिक होता है एस, ईथर, तो उसको क्या बोला, लास्ट में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 135 सी क्वेश्चन नंबर 135।
ओके, क्वेश्चन नंबर 135, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 135, कार्बोजेलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोजेलिक नहीं अल्कोहल है, हेयर कार्बोजेलिक एसिड, हेयर कार्बोजेलिक एसिड। अब इन तीनों में चेक करने हैं कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो पहले वाले में चेक करें, पहले वाले में क्या लगेगा, इसका प्लस एम। देखो तीनों में ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट करेगा, क्लियर है। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या है, तीनों में कॉमन है। अब क्या चेक करने हैं हमको, बेसिक इफेक्ट चेक करने हैं। बेसिक इफेक्ट की ऑर्थो इफेक्ट क्या आ गया है, कॉमन आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कौन से इफेक्ट लगाने हैं, अब सिर्फ हमें बेसिक इफेक्ट लगा करके निकालने हैं। तो इसका प्लस एम है, इसका प्लस एच है, और इसका क्या है, माइनस एम है। माइनस कार्बोजेलिक की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्लियर है। जितने भी माइनस इफेक्ट हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, प्लस इफेक्ट डिक्रीज करता है। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, कम टू द क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, सी क्वेश्चन नंबर 148। दिस वन इज़ मोर बेसिक दैन दिस। ये सवाल हमने आपको क्लास में भी कराया है, ये क्लास में कराया हुआ सवाल है, लेक्चर में कराया हुआ सवाल है। तो दिस वन इज़ मोर बेसिक दैन दिस वन। तो ये वाला ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि बताया था इन दोनों के ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका ऑर्थो इफेक्ट, सॉरी इन दोनों के वजह से ऑर्थो इफेक्ट लगेगा NO2 पे, इसके वजह से इसका माइनस एम ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्लियर है। तो माइनस एम तो इसका ऑपरेट कर ही नहीं रहा। अब क्या चेक करने हैं, तो अब देखो दिस इज मोर बेसिक दैन दिस वन। तो क्यों मोर बेसिक है, क्योंकि इसका माइनस एम ऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका माइनस एम क्या हो गया, वीक हो गया। इसके माइनस एम के वीक होने की वजह से ये क्या हो रहा है, मोर बेसिक हो जा रहा है, क्योंकि माइनस इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 146 भी डाउट है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 156 पे आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, 2 मोल NaNH2। तो 2 मोल NaNH2 का मतलब यहाँ पे क्या है, NH2 माइनस Na प्लस। तो क्या है हमारे पास, NH2 माइनस है, दिस इज बेस, किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। तो जो दो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे उससे रिएक्शन कराना है इस वाले का, इतना ही काम करने हैं। जो दो सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं उससे रिएक्शन कराने हैं। तो कार्बोजेलिक एसिड तो दोनों ही अल्कोहल और इससे ज़्यादा एसिडिक आता है, तो एक मोल तो कार्बोजेलिक से रिएक्ट कर लेगा, दूसरा मोल किससे रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन पे अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये तो चला गया, इन दोनों में से कोई एक करेगा। अब इन दोनों में चेक करो, तो यहाँ पे देखो NO2 का इस ग्रुप पे माइनस एम तो यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा, मगर माइनस आई ऑपरेट करेगा। बाकी सब चीज़ क्या है, दोनों में कॉमन है, मगर ये NO2 इसके पास एडिशनल है। तो माइनस आई ऑपरेट करेगा, माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, माइनस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इस वाले से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा H कहाँ से, यहाँ से चला जाएगा। तो चेक करो कहाँ से H गया है, तो पहले वाले में चेक करो, फर्स्ट वाले में चेक कीजिए, एक H कार्बोजेलिक एसिड का गया, दूसरा H इस वाले अल्कोहल का गया, करेक्ट है। तो कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 150, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अब इस वाले के लिए ना आपको थोड़ा सा वो जो ऑर्डर लिखवा के दिया था, लिस्ट लिखवा के दिया था, उस पर जाने पड़ेंगे। कार्बोजेलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। कार्बोजेलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो X जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्लियर है। X जो है हमारा वो ज़्यादा एसिडिक है। अब X के बाद देखो Z एंड Y में चेक करने हैं। तो Z एंड Y में चेक करें कि H डोनेट करने के बाद कौन ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। H डोनेट करने के बाद देखो इस वाले ग्रुप में यहाँ पे इसका माइनस आई ऑपरेट करेगा, पर यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से माइनस आई नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो माइनस आई अगर H डोनेट किया, लोन पेयर क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके माइनस आई के वजह से, क्लियर है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस वाले ग्रुप पे इसका माइनस आई लग रहा है, इस वाले पे इसका माइनस आई बहुत कम लग रहा है। तो सिंस माइनस आई यहाँ पे ज़्यादा है इस वाले ग्रुप पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इस वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ, जेड का एसिडिक स्ट्रेंथ वाई से ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्स के बाद कौन सा आ जाएगा, जेड, फिर कौन सा आ जाएगा, वाई। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर।
Now question number 159. Question number 159. Come to the question number 159. 159. कीटो आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। द कीटो आइसोमर बनाना है इस वाले का। तो चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। तो हम ना एक बनाता हूँ, मैं पहला एक बनाता हूँ, तो बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे। चलो मैं इसका ना एक अलग से पेज लेकर के बना देता हूँ। ओके, तो क्या है कि फर्स्ट यहाँ वाले जो थे डबल बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक OH पहले से थे और दूसरा H यहाँ पे आकर के लग जाएगा। बाकी जो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे था, बाकी सभी पे OH एंड OH एंड OH एंड OH। तो एक कन्वर्जन ये हो सकता है पहले वाले का। क्या किया हमने इस वाले में, देखो इधर क्या किया है, क्या किया कि यहाँ जो लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे था डबल बॉन्ड, बाकी सभी पे मैं भी लिख नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो लोन पेयर था ये अपना लोन पेयर इधर दे दिया, ये नेगेटिव यहाँ पे आया और ये H+ को ले लिया। यही कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है। क्लियर है? अरे क्लियर है, यही होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। तुम लोग अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो देखो फिर से बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला काम क्या करने हैं यहाँ पे, सबसे पहला काम आपको करने हैं कि एसिडिक H को रिमूव कर देना है। एसिडिक H को रिमूव कर देना है मतलब कि यहाँ से हमने H को रिमूव करके माइनस बना दिया। अब इधर OH है हमारा, इधर मैं लिख नहीं रहा हूँ, इधर आप बस देख लीजिए। फिर क्या होता है, ये अपना लोन पेयर को देता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दो बेसिक साइट जो बताया था, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पहले से एक OH है और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी डबल बॉन्ड यहाँ पे, बाकी सभी के पास OH अटैच। यहाँ तक क्लियर है? अब जो सिस्टम में H+ अवेलेबल होता है, सिस्टम में जो H+ अवेलेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये H+ को ले लेगा, और अगर ये H+ को ले लेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, क्या ये अब जा सकता है, क्या ये वाला अब टॉटोमेरिज्म में जा सकता है? क्या नहीं, टॉटोमेरिज्म में ये नहीं जा सकता। ये ऑप्शन ऑफ टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ये करेगा तो ये नहीं करेगा। मतलब अगर इसने पार्टिसिपेट किया तो इन दोनों के टॉटोमेरिज्म में जा पाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल, कम हो जाएगी। ये दोनों नहीं जा सकते एक साथ। अब देखिए थर्ड वन वाले में इसका पार्टिसिपेशन करा दो, फिर इस वाले का पार्टिसिपेशन करा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। क्लियर है? ये करेगा तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसको क्या चाहिए, यहाँ पे XYZ बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए, तब बचेगा ही नहीं ना अगर इसने कर लिया तो। क्लियर है? ये वाला जा सकता है इस वाले के साथ, इस वाले के साथ, मगर ये वाला नहीं जा सकता। अब इस वाले ने कर लिया तो फिर ये वाला नहीं जा पाएगा, अगर इसने कर लिया तो फिर ये नहीं जा पाएगा। समझा? मतलब एक को छोड़कर एक चलता रहेगा। समझ गए? तो ये करेक्ट इसका कीटो फॉर्म बनने चाहिए। तो चेक करो कौन सा दे रखा है कीटो फॉर्म में। ओके, ऑप्शन सी, चेक करो, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 159 हो गए, क्वेश्चन नंबर 166, क्वेश्चन नंबर 166। द करेक्ट एसिडिक स्ट्रेन, इसमें सीधा ऑर्थो इफेक्ट लगाने का, देखो OH है सर यहाँ पे, ये OH और एक तो ये पूरा सा बल्कि ग्रुप है, तो इस पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, मतलब दो ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे। इस वाले पे आ जाओ तो इस वाले का ग्रुप का ऑर्थो इफेक्ट लग रहा होगा इसके ऊपर, इस कार्बोक्सिलिक के, तो यहाँ एक ऑर्थो इफेक्ट, और यहाँ पे तो कोई ऑर्थो इफेक्ट ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा आ गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक P वाला आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, PQNR A आ जाएगा। ये आसान सा सवाल है। Question number 193. Come to the question number 193. Question number 193. See, question number 193. Identify the compound which contain most acidic hydrogen. चलो, तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों में नहीं हो सकता, ये दोनों हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे से H हटाया तो ये नेगेटिव, और यहाँ से H हटाया तो यहाँ भी नेगेटिव। तो अब देखिए
कि अगर आपने यहाँ से H हटाया, इस वाले में यहाँ पे H हटाया, तो इसका ना स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, देखो मैं तो समझाता हूँ। इस वाला स्ट्रक्चर को देखो कि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव दिया तो इसका जो पाई बॉन्ड है, मैं ना यहाँ पाई बॉन्ड लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड को हटा के पाई बॉन्ड एज्यूम करा देता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो, अगर मैं एक रिंग को काउंट करूँ, इस वाले एक रिंग को काउंट करूँ, इस वाले एक रिंग को काउंट करो तो देखिए इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये कुछ इस टाइप का जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं? तो H हटाने से ये भी एरोमेटिक हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, ये भी हो जा रहा है, तो यहाँ 3 एरोमेटिक चेन अपेयर हो जा रहे हैं। यहाँ पे H हटाने के बाद ये एसिडिक है मगर कोई एरोमेटिसिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आ रही, मगर यहाँ H हटाने से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ये 5 मेंबर का जो रिंग था, जो ये 5 मेंबर का रिंग है, ये जो तीनों 5 मेंबर के रिंग हैं, ये वाले और ये वाले, ये तीनों 5 मेंबर के रिंग क्या हो जा रहे हैं, एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बाकी सभी से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया बी। तो यहाँ तक इतने सारे सवाल थे, आई थिंक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लिया है। इसके अलावा भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, अदरवाइज आप कॉल कर लें।